So now we have our next speaker of the day lined up, a brilliant presentation as we are talking about Indian markets. So we are talking about dynamic Indian markets. Please welcome our esteemed speaker, Mr. Sandeep Bagla, CEO, Trust AMC, as he's going to share his perspective on Indian market. Good morning, good afternoon. I think we are just starting at 12 noon. So, very happy to be here. Thank you for having me here. I will spend about 10 minutes, 15 minutes on our perspective on the different markets. And then I will tell you briefly about who we are as Trust Mutual Fund. So, I have been in the AMC business, this is my second innings. Earlier, I used to manage funds for AIG Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, and Principal Mutual Fund, out of which I think all the three have actually disappeared. Principal has got merged, has been taken over. AIG has closed shop and all the schemes were merged with Kotak. And Reliance Mutual Fund also has been taken over by Nippon AMC. So this is the sign of times that we live in. This is the kind of volatility that we experience in the markets, that people who are there, sometimes global majors. I remember when I joined AIG Group in 2007, the company had a net worth of $180 billion. उस टाइम पे $180 बिलियन की ग्लोबल नेटवर्थ थी. तो मैंने सोचा कि ये कंपनी तो बंद नहीं हो सकती है, यहाँ मैं 20 साल गुजारूंगा और ये कंपनी बंद नहीं होगी. लेकिन 1-1.5 साल के अंदर ग्लोबली कंपनी बंद हो गई थी. सो आजकल हमें लगता है कि भाई वी आर इन वेरी स्टेबल मार्केट्स और ये मार्केट्स हमेशा ऊपर ही जाते रहेंगे और हमारे इन्वेस्टर का पैसा बनता रहेगा, हमारा पैसा बनता रहेगा. शायद ऐसा होगा भी, बट व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट वाज कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होता रहे. वी लिव इन वेरी वॉलेटाइल टाइम्स. वी हैव हैड अ ड्रीम रन फॉर द लास्ट 7 years. And hopefully for the next 15 years we will have another dream run, but we should be careful. Sorry. So we will speak about India, the growth story. We are all familiar with what is happening. I will try to shed some more light on it. We are in a bright spot right now. The Indian mutual fund industry is in a bright spot. And our incomes are rising, which is going to be a future pillar for growth. Macroeconomy, we have a stable domestic economy. However, there are some mixed signals coming from the economy, and we will have to look at some of the other parameters also. One of the important things is that incomes are rising. Now, our population is going through a transition. आज हमारी जो demographic dividend है कहीं पे नहीं है globally. Today, I think our average age is 27, 28, 29 years, which is one of the youngest populations, which means कि next 20 years तक हमारी population जैसे जैसे grow करेगी, उनकी income levels बढ़ेंगी, उनको काम मिलेगा और उनकी स्पेंडिंग होगी हाउसेज में, कंज्यूमर गुड्स में, गाड़ियों में, विच इज़ व्हाट वी आर सीइंग. उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड्स में बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. तो बोथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन विल कम फ्रॉम द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया. आज अगर हम देखें कि हाउ इज़ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोन, सो द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ बीन ग्रोइंग एट अबाउट 12% for the last 7-8 years on a CAGR basis, which is a very healthy compounded annual growth. If you look at the equity funds, they have been growing at a pace of 30% per year. So उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, मार्केट भी ऊपर गया है और कॉर्पस भी बढ़ा है लोगों का. और जो SIPs है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टिकी मनी है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में. उसका कंट्रीब्यूशन भी 24% करीब बढ़ा है लास्ट 7-8 सालों में. म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी लो है. ग्लोबली अगर स्टैंडर्ड्स हम देखें इमर्जिंग मार्केट्स में या डेवलप्ड मार्केट्स में, तो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी कम है. हमको लगता है कि काफ़ी बढ़ गया है. ऑलरेडी वी हैव ग्रोन टू अबाउट 45 lakh crores. Can we grow more? Yes, we can grow more.
and this is a long-term trend. We are in the middle of a trend. So this is not the time to think whether the trend is over, whether the trend will reverse. I think long-term structurally we are in a growth phase for both the economy and the population and the mutual fund industry. Rising income is one of the base pillars जिसके ऊपर हमारी growth story टिकी हुई है, और 2012 में average per capita national income has more than doubled in the last 10 years. ये एक important slide है जो दिखाती है कि हमारे household की income कहाँ है अभी. Almost 74% of our household income in 2021 was between $0 to $10,000 per year. ये बढ़ जाएगी. About 70% of the population in 10 years will move to $5,000 to $35,000 in terms of household income. This is a very, very strong data point in terms of our expectations for the future. और जैसे जैसे ये होता जाएगा आप देखेंगे कि जो हमारी कंपनीज का स्केल है, जो हमारी कंट्री का स्केल है इन टर्म्स ऑफ बोथ इनकम एंड कंजम्पशन and in terms of revenues and profits will keep growing, and which is why our markets have experienced this strong kind of growth which is not dependent on cyclical factors or in terms of seasonal factors. So this rally is more structural in nature, and this is what I wanted to highlight. क्या सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, सब कुछ सही नहीं है. किसी भी मार्केट में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं जाती. जब भी ग्रोथ होता है तो सप्लाई कैचअप नहीं कर पाती है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड विच इज़ वाई आवर इन्फ्लेशन इज़ हाई. आवर इन्फ्लेशन इज़ क्लोज टू 7% राइट नाउ. yesterday there was RBI policy and although RBI did not raise any interest rates, RBI गवर्नर ने कहा कि भाई इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा 4% है, 2 से 6% नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि 6% अगर आ जाए तो हम खुशियाँ मनाएं. We are not going to cut rates. Possibly there could be one more rate hike. Liquidity is going to be tight. ये आप मान के चलिए. इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं. बैंक डिपॉजिट्स में पैसा लगाते हैं तो उसमें भी अभी 7 से 8% मिलता है. Even the best of banks are giving 7% for 1 year deposits. This trend is going to continue for at least next 6 to 12 months. नेक्स्ट 12 महीने कहीं पे कोई भी रेट कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है. ये आप लिख के ले सकते हैं. ये भी RBI गवर्नर ने कहा है, और ये कोई भी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट्स में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी रेट कट होने की. इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट्स 250 बेसिस पॉइंट से ऊपर गए हैं लास्ट 1 से 2 साल में. और इलेक्शंस इज अनदर risk factor which is going to materialize in next 6 to 12 months, and I think काफ़ी हद तक मार्केट्स ने पॉजिटिव आउटकम ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है in terms of elections in the market prices. ऐसा नहीं है कि अगर elections में there is political stability तो market और ऊपर नहीं जाएगा, but काफ़ी हद तक market has built in possibility of the government continuing in its current format going forward, which will lead to political stability. Globally, markets have been going up in the US also. Normally क्या होता है कि हमने लास्ट 10-15 साल में देखा है कि जब चाइना में ग्रोथ हो रहा है तो वर्ल्ड में भी ग्रोथ होता है, कमोडिटीज़ में भी ग्रोथ होता है, इंडिया में भी ग्रोथ होता है. Similarly, US and Europe also do well, but right now we are witnessing डीसिंक्रोनाइजेशन हो गई है. जितनी ग्लोबल इकोनॉमीज़ है वो एक दूसरे से लिंक टूट गया है उनका. चाइना अभी स्लो डाउन में है, वो लोग रेट काट रहे हैं. यूएस रेट हाइक कर रहा है. यूरोप और इंडिया अभी स्टेटस को मेंटेन करेंगे एज फार एज इंटरेस्ट रेट्स आर कंसर्न. सो ग्रोथ विल बी हाई, बट चाइना इज़ द वन इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी विच इज़ नॉट रनिंग राइट नाउ. अगर चाइना रिकवर करता है, बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, तो आपको एक और राउंड मिलेगा जिसके कारण इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर जा सकते हैं, इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी, कमोडिटी प्राइस भी शायद ऊपर जाएंगे. तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, बट बाकी मार्केट्स में शायद इतनी तेज़ी ना हो. कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर गए थे अब थोड़ा स्टेबलाइज कर रहे हैं. फूड प्राइसेस भी ऊपर गए थे, अब वापस थोड़ा कम हो रहे हैं. ये एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट है. हम लोग देखते हैं कि लिक्विडिटी कितनी है ग्लोबल इकोनॉमी में, कितनी लिक्विडिटी है. अगर हम 2008 में देखें
तो 2008 में यूएस फेड की गवर्नमेंट की, यूएस फेड जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ का आरबीआई है, दे हैड अ टोटल बैलेंस शीट साइज ऑफ $400 बिलियन ओनली. वाई आई एम सेइंग $400 बिलियन ओनली? बिकॉज वहाँ से बढ़ के अभी वो $9 ट्रिलियन हो गया है. तो $9 ट्रिलियन होने के कारण जो पैसा उन्होंने प्रिंट किया है वो ग्लोबली सब जगह गया है. वो कमोडिटीज़ में भी गया है, करेंसीज में गया है, बॉन्ड प्राइसेस में गया है, इन्फ्लेशन क्रिएट किया है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो एसेट क्लासेस है जैसे रियल एस्टेट या फिर इक्विटीज़ या फिर गोल्ड या फिर NFTs, क्रिप्टो करेंसीज, ऑल ऑफ देम वेंट अप. नाउ सम ऑफ देम जहाँ पे बेसिस नहीं था, जैसे NFTs, दे हैव कम क्रैशिंग डाउन. जहाँ पे स्पेकुलेटिव था तो क्रिप्टो करेंसीज हैव करेक्टेड, बट जहाँ पे फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, दोज इकोनॉमीज शेयर प्राइसेज हैव नॉट कम डाउन इन अ मटीरियल वे and the stock markets have remained high. In fact, last night, I don't know how many of you saw, but there was a huge rally, about 1 to 2% in the US technology stocks, and now the expectation is that there is going to be another round of major teji happening in the US stocks, especially in the Nasdaq and in the tech companies, because their profitability is very high, their growth is very strong, and there is no engine which is slowing down in the US economy in spite of rate hikes. India में liquidity is tight because we have very high inflation and it's going to remain tight. So one should expect that the loan markets, the deposit markets are going to remain tight and liquidity will remain tight and the money supply is going to become even more difficult. In terms of asset classes, अगर bond market का हम देखें तो bond market में 1 year का rate भी 7% के आसपास है और 30-year बॉन्ड या 40-year बॉन्ड भी 7.5 के आसपास है. तो 40-50 बेसिस पॉइंट में पूरा कर्व है. राइट नाउ मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं. तो अभी इंटरेस्ट रेट आपको 7-7.5 मिलेगा. बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे आप या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, सो देन वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि 1-2 साल बाद इंटरेस्ट रेट जब नीचे आए, इन्फ्लेशन नीचे आए, तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक बढ़ावा मिले, एक कैपिटल अप्रिसिएशन हो, विच विल इंक्रीज योर रिटर्न्स फ्रॉम 7 to maybe 10%, 9-10%. So, but the precondition is you have to remain invested for 2 to 3 years and you have to keep investing for next 6 months. In terms of PE, what I would like to show is that our PE is one of the highest. जो हम निफ्टी की पी है आज 22 के आसपास है, हिस्टोरिकली भी हाई है और ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी काफ़ी हाई है. अगर हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो इस चार्ट में नहीं है देखें उनका पी प्राइस अर्निंग्स रेशियो तो वो 30 के आसपास है. हिस्टोरिकली इट्स एट वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स. इसका क्या मतलब है कि ये करेक्शन होगा यहाँ पे? कोई ज़रूरी बात नहीं है. इंडिया इज़ अ कंट्री विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफी. इट हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. इंडिया हैज़ रिमेन्ड एन एक्सपेंसिव मार्केट by global standards, by other emerging market standards for the last 15 years and is going to remain for the next 15 years. Because growth yahi pe hai. India is the highest growing country today and is likely to remain for the next 1 year at least. Now in that case, we always will command a premium, so that is not a problem. The other emerging markets have a PE of 14 only, 13.76, and even US has a PE of about 20. नाउ अगर हम यूएस कंपनीज़ में देखें, अगर मैं आपको पूछूं कि आप लोग कोई यूएस कंपनी का प्रोडक्ट आपने आज ख़रीदा है या कल ख़रीदा था, आपको लगता है किसी को यहाँ लगता है कि आपने किसी यूएस कंपनी को पैसा दिया है आजकल में, लास्ट 10 दिन में? लगता है किसी को? गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, आप लोग यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के, आप ऊबर, आप रोज़ अमेरिकन कंपनीज़ को 10 से 15 बार आप पैसा देते हैं. ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में जो अमेरिकन सिटीज़न से पैसा लेके आती है रोज़ के बेसिस पे. आज हमारा काम बंद हो जाएगा अगर हम अपनी कंपनीज़ को बंद करना, यूएस कंपनीज़ को पैसा देना बंद कर दें. आप लोगों ने अभी QR कोड्स दिखाए थे अभी यहाँ पे, उसमें क्या था? लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब अमेरिकन कंपनी है. तो ये कंपनीज अमेरिका में हैं एंड इसके बावजूद उनका वैल्यूएशन हमारी कंपनी से कम है आज, बिकॉज हमारी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अभी भी काफ़ी हाई है. ये एक देखने की चीज़ है.
I will just briefly touch upon what we do. We are Trust Mutual Fund. We have been promoted by NIPA and Utpal Seth. NIPA is a rank holding chartered accountant. Utpal is a rank holding CFA. We will come to them later. We have been in business for last 25 years. Utpal was also the partner of Rakesh Jhunjhunwala for the last 25 years. We have come out with a mutual fund. In the mutual fund business, we have professionals from the industry, and we have a very unique style of management in fixed income, जिसको हम लिमिटेड एक्टिव कहते हैं. लिमिटेड एक्टिव ऐसी स्टाइल है जिसमें हम क्रिसिल के साथ ने टाई अप किया है. हमने क्रिसिल इंडिया की सबसे प्राइम मोस्ट रेटिंग एजेंसी है. इट्स अ पार्ट ऑफ द S&P ग्रुप नाउ, एंड वी हैव टाइड अप विद क्रिसिल. जो भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्रिसिल हमको एक यूनिवर्स बना के देती है, इवेल्युएट करती है, उसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं. तो इवन व्हेन वी इन्वेस्ट इन AAA कंपनीज, दे आर, अगर इंडिया में 200-250 AAA कंपनीज है तो हम केवल 50-60 कंपनीज में ही करते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को कोई भी रिस्क ना हो. ये हम काफ़ी सिस्टमैटिकली और साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी होप टू डू इन द फ्यूचर ऑल्सो. वन मोर थिंग, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि रेटिंग्स दो रकम की होती है, लॉन्ग टर्म रेटिंग्स और शॉर्ट टर्म रेटिंग्स. कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 1 साल के नीचे का होता है, कोई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, तो उसको शॉर्ट टर्म रेटिंग दी जाती है. शॉर्ट टर्म रेटिंग स्केल A1 से शुरू होता है और A1 प्लस से शुरू होता है और नीचे A4 तक जाता है, बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जाता है. 1 साल के ऊपर की बॉन्ड्स की लॉन्ग टर्म रेटिंग होती है. अगर हम किसी शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में देखें तो उसकी रेटिंग टिपिकली A1 प्लस होती है. तो A1 प्लस से हमें लगता है कि ये काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी सेफ़ होता भी है. हाउएवर उन कंपनीज़ की लॉन्ग टर्म रेटिंग जरूरी नहीं कि AAA हो. एक AA प्लस या AA कंपनी को भी शॉर्ट टर्म में A1 प्लस रेटिंग ही मिलती है, और अगर वो बैंक है तो इवन A रेटेड पेपर जो होता है उनका, उसको भी A1 प्लस रेटिंग होती है. मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ कि जब हम लोग शॉर्ट टर्म पेपर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म रेटिंग्स देखते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल रेटिंग्स देखते हैं, और हमारा मेथड उतना ही स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक होता है जो हम लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स के में लगाते हैं पैसा उसके लिए. तो हम खाली शॉर्ट टर्म रेटिंग्स नहीं देखते, हम लॉन्ग टर्म रेटिंग्स भी देखते हैं, और लॉन्ग टर्म रेटिंग्स में भी जो AAA कंपनीज हैं उन्हीं के शॉर्ट टर्म पेपर्स में हम लगाते हैं. हमारे अभी 6 प्रोडक्ट्स हैं अभी ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के. ओवरनाइट एंड लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, ये फंड्स टिपिकली 1 साल के नीचे के होते हैं, और जो लॉन्गर टर्म मैच्योरिटी फंड्स हैं वो शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड PSU एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड. जैसा मैंने अपने बारे में बताया आप लोगों की, मैंने म्यूचुअल फंड्स में काम किया है, ICICI ग्रुप में काम किया है, ABN AMRO में काम किया है, और मैं 7-8 साल से ट्रस्ट ग्रुप में ही काम कर रहा हूँ. और अजय कुमार गुप्ता हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं. ये एक्सिस म्यूचुअल फंड से आए हैं, वहाँ के वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेल्स रहे हुए हैं. और आनंद नेवटिया ये हमारे ग्रुप में ही 20 साल से हैं. ये पहले ट्रस्ट का डेट PMS भी चला रहे थे, जिसकी भी काफ़ी अच्छी साइज़ थी और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था. ये हमारे प्रमोटर्स हैं, उत्पल सेठ. एज आई सेड दैट ही इज़ अ CFA गोल्ड मेडलिस्ट. ही वॉज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ राकेश झुंझुनवाला. राकेश झुंझुनवाला, एज यू नो, is a legendary investor whose portfolio is now, I think, more than 50,000 crores. Utpal is his partner, and he is the CEO of Rare Enterprises, which is a flagship company of Rakesh Jhunjhunwala. Rakesh Jhunjhunwala, as you are aware, passed away last year, unfortunately. But obviously his legacy goes on, and his portfolio is still growing because the market is growing. And Utpal is one of the key members and his partner. And Utpal is credited with finding out some long-term investments like Praj Industries, Titan, CRISIL, Lupin. So he has been a very large investor himself in public equity and private equity. And our challenge is, हमारी ये आशा और उम्मीद है कि हम उनकी जो फिलॉसफी है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, उनके जो मेथड्स हैं वो अपने म्यूचुअल फंड में भी लेके आएँ. और उनकी वाइफ नीपा सेठ, शी इज़ अ रैंक होल्डिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो फिक्स्ड इनकम बिजनेस संभालती है हमारे पेरेंट ग्रुप में. और जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू होते हैं इंडिया में,
उसके जो अरेंजरशिप और अंडरराइटिंग होती है उसमें वी आर अमंग द टॉप 5 फॉर द लास्ट 10 years. Other top 4 would be typically large banks like State Bank of India, HDFC Bank, Axis Bank and other banks. So we are very serious players. We have very large presence in the institutional markets. Retail में हम अभी शुरू कर रहे हैं और मेरी टीम यहाँ पे है, विभूति, कमलजीत, शिवानी भाटिया, तो ये आप लोगों से दीपक. So we will be in touch with you and we hope to work with you very closely going forward. Our group has got many awards. In fact, last year, I'm very happy to share that we were adjudged the best bond house for the last year, 2022, by Thomson Reuters, The Asset, which is a Singapore-based company, and IFR, which is a Hong Kong-based company, for some of the fixed income deals that we had done for corporates in India. I think asset allocation is a very important tool, which you all realize. Every 10% allocation to equities, your return increases by almost 75 basis points on a portfolio basis. However, one thing you must realize that when you are trying to increase the volatility, the return of the portfolio, the volatility also goes up. So the only way to beat volatility and ensure good returns is that you increase your investment horizon. You understand asset allocation better than us, but as per us 60% should be in fixed income. Now जरूरी नहीं है कि fixed income का मतलब है कि fixed income funds में हो सकता है कि fixed deposit में हो, bonds में हो, insurance companies में हो, तो काफ़ी पैसा वैसे ही हमारा fixed income में रहता है. And 40% should be in equities, out of which 70% typically should be in large caps, maybe 20% in mid caps and 10% in small caps. And periodically, I think you should balance the portfolios for your investors so that उनका return भी अच्छा रहे और उनकी volatility भी कम रहे. So this is all we have. Why you should invest with us? Because we have expertise in asset classes, both fixed income and equities. We are hiring our CIO, Chief Investment Officer, Mir Vora. He has been the head of equities for ABN AMRO and HSBC mutual funds. He has been the CIO of Max Life Insurance for the last 9 years, handling more than 1.5 lakh crores of assets. He'll be our CIO. He's joining in another week's time. So we have a good team, a fantastic fund management experience, and we have a very structured approach to investing. So with this, I will end my presentation. I don't know if I have time for question answers, but if anybody has a question, I'll be happy to address it. Thank you so much, sir.